Hello everyone. Today we are going to start differentiation, the second unit of business mathematics. But before starting, let me clear you one thing, that there are some formulas listed here, and I'm just explaining and giving few formulas here, and I'll tell you how to apply that. So I have already written the number of questions, the number of formulas. So before starting, just look at here. If you want to differentiate x की power n, that means there is a formula which will say कि आपकी जो power यहाँ पे n है ना बेटा, it will come forward, तो n आपका आगे आएगा, x की power में हो जाएगा n minus 1. This is what you have to remember all the time when you are differentiating any algebraic identity or any algebraic term in the form of given in the form of x की power n. So next one is log x. The differentiation of it is 1 by x. E की power x can be written as a e की power ax. That means e की power ax would remain as it is like e की power ax, and the power which has the coefficient a would come forward. Next one is constant. Differentiation of constant is always 0. 1 by x का differentiation is minus 1 by x square. A की power x can be written as a की power x log a. Whenever you have to differentiate a की power x, that means you have to change your a की power x as a की power x log a. There's one more question, and that is, if you want to differentiate only x, then what will be the answer? Just because I have already told you how to differentiate x की power n, look at the first formula. In the first formula we have seen power n would come forward and the power will remain as n minus 1. So here I can read x as x की power 1 ना, तो how I will differentiate it? 1 आगे आ जाएगा और x की power में क्या आएगा? 1 minus 1, that is 0, और x की power 0, that is 1. So the final answer is 1. So whenever you have to differentiate x, you will get only 1. I hope you all get it now. So let's start with few examples now. Let me change the slide. Let's take an example. I'm asking you to differentiate x cube plus x square plus 1. So beta, it means you have to differentiate every algebraic term here. First x cube, then d by dx of x square plus d by dx of 1. Now, as because I'm going to use the formula, power 3 आगे आएगी और x की power में क्या हो जाएगा? 3 minus 1, that is 2. Now this one x square है, 2 आगे आ जाएगा, x की power में 2 minus 1, that is 1. Plus just because this is a constant, so it would become 0. That would become 3x square plus 2x. This is nothing but this is the differentiation of the given question. Similarly, this was the first question, and similarly if I'll ask you to differentiate e की power 2x plus log x, what will be the answer now? As because I already told you, whenever you want to differentiate any term having exponential, so you have to put forward the coefficient of the power first of all. That means 2 would come forward and it would remain as it is, e की power 2x plus log x का क्या आएगा? It would become 1 by x. Nothing I'm doing here, I'm just using the formulas which I have already told you. Done. Next, let's take one more example here. Let's take this one. If you are differentiating 2 की power x, what will be the answer? Just because I told you a की power x को जब भी आप differentiate करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? a की power x as it is रहेगा. a क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट ही तो है. a की power x का आंसर क्या आएगा? a की power x into log a. तो ये 2 की power x क्या हो जाएगा? 2 की power x log 2. This will be the answer. That's it. Similarly, go and differentiate d by dx of x प्लस e की पावर माइनस 3x. तो बेटा x का क्या आएगा? अभी आपको बताया था x का आएगा 1 प्लस e की पावर माइनस 3x एज इट इज ही आएगा. साथ में इसकी जो पावर है दैट इज माइनस 3x, उसका कोफिशिएंट माइनस 3 आपका आगे आ जाएगा. आंसर वुड रिमेन्स 1 माइनस 3 e की पावर माइनस 3x. दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर minus 3x plus x. Is that clear?
Next, let's take one more example here. See, these are the very basic and very common formulas which we used in differentiation. In case if I'll write to differentiate x cube plus 3 की power x, beta if I'm giving you the question in this form, इसका मतलब ये है that you want to differentiate this function with respect to x. So what you will get, x cube का आंसर 3x स्क्वायर, क्योंकि 3 आपका आगे आ जाएगा, 3 आपका आगे आएगा एंड ऊपर पावर में क्या हो जाएगा 3 minus 1 that is 2 and 3 की पावर x would remain as 3 की पावर x log 3. Clear? Next is differentiate x की पावर a प्लस a की पावर x. बेटा x की पावर a क्या है आपके लिए, वेयर आई एम आस्किंग यू वेयर a is an constant. ठीक है, सो जैसे आपने यूज़ किया था फॉर्मूला x की पावर n के लिए, तो क्या आता था n x n माइनस वन, वहाँ पे आपका n क्या था, कांस्टेंट ही तो था. तो अगर x की पावर a भी दे दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, x की पावर a आगे आ जाएगा, x की पावर a माइनस वन प्लस एज इट इज, और a की पावर x का तो फॉर्मूला हमें पता ही है, a की पावर x log a. दिस विल बी आवर आंसर. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. सो दीज आर सम बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ डिफ्रेंशिएशन जो बहुत ज़्यादातर यूज़ होते हैं और हमें करने होते हैं. इन केस कहीं पे और यूज़ होगा तो आई टेल यू, वो हम अकॉर्डिंगली यूज़ कर लेंगे. नेक्स्ट, नाउ इन केस मैं आपसे बोलूँ डिफ्रेंशिएट करो x log x को, so you can see there are two functions, one is log x and one is x. Now how you will differentiate it, because अगर मैं आपसे x plus log x differentiate करने के लिए कहती तो I guess it would be very easy. आप बोलते x का आएगा 1 and log x का क्या आ जाएगा 1 plus x, यही आपका आंसर आता. But here I'm asking you to find the differentiation of x log x, जहाँ पे क्या हो रहा है, two functions are multiplying, यही हो रहा है आपके सामने. तो हाउ यू विल डू इट नाउ, यू हैव टू अप्लाई अ फॉर्मूला, जिसे बोलते हैं, एक रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल क्या होता है, आप दो फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करें, दोनों फंक्शंस कौन से, u एंड v, वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x. आपने दो फंक्शन u एंड v का प्रोडक्ट करना है, क्या आएगा, u एज इट इज छोड़ दो एंड डी बाई डी एक्स करना है v का, प्लस v एज इट इज छोड़ दो, डी बाई डी एक्स होगा u का. मीन्स व्हाट, आपने इन शॉर्ट पहले वाले फंक्शन को छोड़ दो, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर प्लस पहले वाला छोड़ दो, दूसरे वाला छोड़ दो, पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन करना है. क्योंकि मैंने आपसे कहा था आप डी बाई डी एक्स की जगह डैश भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसी प्रोडक्ट रूल को एक और तरीके से लिख सकती हूँ कि कभी भी u v का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो u डैश v प्लस v डैश u कर लो. क्या पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन करो, दूसरा छोड़ दो, फिर दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन करो, पहला एज इट इज छोड़ दो. एग्जाम्पल समझना, आपके सामने यही एग्जाम्पल चला देते हैं हम. x log x का डिफ्रेंशिएशन करना था, क्या आएगा x log x का डिफ्रेंशिएशन, जैसे ही आपने x log x की बात करी, आपने क्या करना है, पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन करो, दूसरा एज इट इज छोड़ दो, प्लस अब आपने क्या करना है, पहला एज इट इज छोड़ो और दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन करना है. तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, अभी जस्ट बिकॉज वी नो द फॉर्मूला, x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 एंड log x रहेगा आपका एज इट इज, प्लस x एज इट इज है, log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स. बेटा x से x कैंसिल हो गया, क्या रह गया यहाँ पे 1 रह गया, और यहाँ पे था log x, तो आंसर वुड बी 1 प्लस log x या फिर log x प्लस 1, जो मर्जी बोलो एक ही बात है. इज दैट क्लियर? लेट्स ट्राई वन मोर एग्जाम्पल. Let us suppose I am asking you to integrate x square
ई की पावर 3x। अब बेटा दो फंक्शंस है, एक एल्जेब्राइक और एक एक्सपोनेंशियल। तो मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x का डिफ्रेंशिएशन। आपने क्या करना है, आपने पहले वाले को करना है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करो, ई की पावर 3x छोड़ दो। अगले केस में ई की पावर 3x को डिफ्रेंशिएट करना है एंड एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ना है। एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, 2 आगे आ जाएगा, एक की पावर में 2 - 1 दैट इज 1 इंटू ई की पावर 3x तो हम एज इट इज छोड़ रहे हैं, प्लस अब e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 आगे आएगा, e की पावर 3x इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज, दैट मीन्स आंसर इज 2x e की पावर 3x प्लस 3 e की पावर 3x एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो आप कॉमन भी ले सकते हो, इन शॉर्ट यू कैन राइट e की पावर 3x कॉमन है और x कॉमन है, तो 2 प्लस 3x, दिस इज द फाइनल आंसर। I hope it is very clear now how to apply the product rule here. Let's take one more other example. टू द पावर x log x एक आपका कौन सा फंक्शन है, आप ध्यान रखना, आपने 2-3 फॉर्मूलाज पहले ही पढ़े हैं। एक फंक्शन आपका a की पावर x टाइप का है और एक फंक्शन तो आपका है ही log x, ठीक है। आपने क्या करना है, एक को मान लो u, एक को मान लो v, डन। तो आप तो u v डैश ही कर रहे हो, क्या आएगा आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आपने तो u डैश v प्लस v डैश u ही अप्लाई करना है। u क्या था आपके पास, 2 की पावर x, तो मतलब आप 2 की पावर x का डिफ्रेंशिएशन करोगे, log x एज इट इज छोड़ोगे, फिर आप log x का डिफरेंशिएशन करोगे एंड 2 की पावर x एज इट इज छोड़ोगे। आई एम सो सॉरी, आई थिंक आई हैव डन मिस्टेक हियर, इट इज 2 की पावर x नॉट 2x। सो 2 की पावर x क्या आ जाएगा, 2 की पावर x log 2 एंड log x एज इट इज, प्लस log x का क्या डिफरेंशिएशन आएगा, 1/x, 2 की पावर x एज इट इज छोड़ दो। यू कैन टेक 2 की पावर x कॉमन, सो आई गेट log x log 2 plus 1/x. This is the final answer. Fine. In the same way, I can apply one more thing, which is considered as quotient rule. Quotient rule किस लिए होता है, अगर आप डिफ्रेंशिएट करो u by v टाइप के फंक्शन को, जहाँ पे u and v क्या है, वही अपना they are the functions of x. So you will get, पहले आपने इसमें कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है वो देखो, आपने वही करना है, पहले वाले को डिफरेंशिएट, दूसरे वाला एज इट इज लिखो, माइनस दूसरे वाले को डिफरेंशिएट, पहले वाला एज इट इज, वही जो सेम आपने ऊपर किया था वही नीचे करना है, बट हियर यू नीड टू चेक द ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लग रहा है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट सेकंड एज इट इज, माइनस सेकंड डिफरेंशिएट फर्स्ट एज इट इज, डिवाइडेड बाय आपका जो भी डिनोमिनेटर था, क्या डिनोमिनेटर है, v डिनोमिनेटर है, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ये आपने अप्लाई करना है। एग्जाम्पल देखना, मैंने आपसे कहा फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय लॉग एक्स, चलो ये ले लो। तो क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला। पहला जो ऊपर आपका देखो, अब आपके लिए ये u है और ये v है, तो आपने क्या करना है, जस्ट बिकॉज यू वांट टू डू u डैश v, तो आपका जो u था एक्स स्क्वायर, उसको डिफ्रेंशिएट करना है, v एज इट इज लिखना है log x, माइनस फिर v को डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब log x को डिफ्रेंशिएट करना है, और एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखना है, डिवाइडेड बाय वट एवर द डिनोमिनेटर इज हियर दैट इज v, तो log x अपना v है, log x का होल स्क्वायर। आंसर वुड बी, आप क्योंकि एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x आएगा, log x तो अपना एज इट इज है ही, माइनस log x का किया तो 1/x आएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज है, डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। आंसर वुड रिमेन 2x log x माइनस x से x कैंसिल हो गया, x में जाएगा, डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। आंसर वुड रिमेन, अगर आप x कॉमन ले ले तो 2 log x माइनस 1 divided by log x का whole square. I hope it is clear now. In the same process as we have applied in the
product rule. We have to apply the same process in the quotient rule. Depends whether the function is given in the form of quotient or in the form of product. Fine. Let's take one more example here. If I'll ask you to differentiate e की power 2x by x square, what you will do now? For you this time, what is u and what is v? Similarly, numerator would be considered as u and denominator would be considered as v. So we will write u dash v, that is e की power 2x का differentiation, v अपना as it is है, minus v का differentiation and u as it is, divided by v जो कि x square है, इसका भी whole square. आंसर वुड रिमेन, क्योंकि e की पावर 2x का क्या आएगा, 2 e की पावर 2x x स्क्वायर माइनस 2x e की पावर 2x एज इट इज. ये आपका डिफ्रेंसिएशन था किसका, ध्यान से देखना एक बार. आपने ये जो 2 की पावर x किया है, ये x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन था, और ये जो आपने 2 e की पावर 2x किया है, ये e की पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन है. आपका x स्क्वायर एज इट इज है, आपका e की पावर 2x एज इट इज है. नीचे x की पावर 4 का क्या आंसर, x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 4. सो यू विल गेट 2 e की पावर 2x x स्क्वायर माइनस 2x e की पावर 2x डिवाइडेड बाय x की पावर 4. लेट्स टेक कॉमन 2x और e की पावर 2x कॉमन है, तो यहाँ से x और यहाँ से 1, दो टर्म्स आपके पास रहेगी, डिवाइडेड बाय x की पावर 4. आप चाहो तो फर्दर यू कैन सिंप्लीफाई इट. हाउ? यू कैन कैंसिल x, नीचे x क्यूब आ जाएगा, तो 2 e की पावर 2x by x क्यूब x माइनस 1 कैन बी कंसीडर एज योर फाइनल आंसर. ये देखना आप ध्यान से, यहाँ से लगा के यहाँ तक सिर्फ आपने क्या किया है, आपने सिर्फ किया है सिंपलीफाई. अदरवाइज फॉर्मूला जो आपने अप्लाई किया था वो तो सिर्फ इतना ही है, जहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द न्यूमरेटर गिवन, व्हाट इज द डिनोमिनेटर, एंड देन जस्ट अप्लाई द क्वेश्चन रूल. So I hope it's very clear how to apply the product rule, how to apply the question rule. You can attempt number of questions using the same process, same method. Okay. So let's stop it. You can attempt number of questions from any of the book.